Hello friends, here we are again discussing another chapter of mathematics. Today we'll begin with the last chapter of part 1, that is differential equation and its application. देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है बेटा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इसका वेटेज सबसे ज्यादा है बेटा एंड द वेटेज इज 10 मार्क्स. कितना है बेटा? 10 मार्क्स. पिछले दो चैप्टर्स हमने किए थे बेटा, उसका वेटेज 4 and 5 मार्क्स रिस्पेक्टिवली था बेटा. दो चैप्टर थे और देयर वर 1 or 2 एक्सरसाइजेस, ज्यादा थे भी नहीं, छोटे छोटे चैप्टर्स थे, वेटेज 4 and 5 था. लेकिन इसमें देखो बेटा तो वेटेज इज 10 मार्क्स. आसान भी है बेटा, नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल. So you should go for this chapter. Right? In fact, you should go for each and every chapter. कोई भी चैप्टर आपने ऑप्शन में डालने का दिमाग में भी नहीं लाना है बेटा. Right? Let's start with the differential equation. तो नेचुरली देखो बेटा, आपको पहले ये पूछेंगे आप कि सर ये differential equation होता क्या है. Let's see the definition of the differential equation which is given in the textbook itself. An equation involving dependent variable or variables, एक या एक से ज्यादा, independent variable and derivative or derivatives of dependent variable or variables with respect to the independent variable. मतलब derivative of dependent variable with independent variable is called as a differential equation. देखो बेटा, now suppose there are only two variables y and x. y is the dependent variable, x is the independent variable. Then फिर क्या आएगा बेटा? The equation consists of y, x and dy by dx, d square by dx square, whatever. कितना? Any order of the derivative. They are called as the differential equations. Okay बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे देखो बेटा, इसने dy by dx plus y is equal to x ऐसा दिया है, तो इसमें क्या है बेटा? डेरिवेटिव का टर्म है, y है, x है, x square d square y by dx square plus x dy by dx plus y is equal to 0, d square y by dt square is equal to 2t. अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है बेटा? द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x and y is dependent on x, therefore y is the dependent variable, x is the independent variable and y is the dependent variable, x is the independent variable. Correct? यहाँ पर क्या है बेटा? d square y by dx square. यहाँ पर again y is the dependent variable and x is the independent variable. Correct? Okay. लास्ट में बेटा y is the dependent variable and t जो है, t is the independent variable. So these are some of the examples of differential equation. Now the next one what we have to see, अभी यहाँ पर इतने सारे दिए बेटा, तो these all are what? Yes, differential equation. Now we are interested in ordinary differential equations only. तो फिर ये ordinary क्या होता है बेटा? A differential equation in which the dependent variable is dependent only on one independent variable. Say x is called as the ordinary differential equation. So the dependent variable depends only on one independent variable. अगर सिर्फ there is only one independent variable, देखो बेटा यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर x है ना, यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक हो सकता है. So such an equation is called as an ordinary differential equation and we are interested only in the ordinary differential equations. Okay. Now let us start with the definitions of different terms which we are going to use in this chapter or the first exercise, whatever you want to say. Now what is the order of a differential equation? It is the order of the highest order derivative. Highest order of derivative, that is the order of the derivative. अब यहाँ पर देखो बेटा, dy by dx plus y is equal to x. We are differentiating only once, सिर्फ एक बार differentiate कर रहे बेटा, therefore this has the order 1. कितने ऑर्डर है बेटा? 1. यहाँ पर x square d square y by dx square है, कितने बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं? 2 बार, therefore the order is 2. The order is 2. यहाँ पर d square y by dx square plus x dy by dx plus 2y, इसका भी ऑर्डर कितना है बेटा? डेरिवेटिव कितने बार ले रहे हैं? 2 बार. So the order is again 2 and 2 dy by dx is equal to e raised to x. इसकी ऑर्डर कितनी बेटा? 1 है, इसकी ऑर्डर है 1. ओके. सो ऑर्डर निकालना सबसे आसान चीज है बेटा. एंड माइंड यू, एक या 2 मार्क के लिए आता है बेटा. एक तो ऑर्डर पूछते हैं और एक डिग्री पूछते हैं, कंपलसरी पूछते हैं बेटा. तो इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल. इट इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डर तो देख लिया बेटा, विच ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव वी आर डूइंग. नाउ लेट अस सी व्हाट द डिग्री. इट इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. क्या है बेटा? पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव.
अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो अभी डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पर तो 1 लिखा है उसने, अगर ये 1 नहीं भी लिखा होता तो भी अपने को पता है कि वहां पर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी बेटा 1 आएगी। करेक्ट। एक चीज और ध्यान देना बेटा, व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल इंडाइसेस एंड नेगेटिव इंडाइसेस इफ एनी। अगर नेगेटिव इंडेक्स है बेटा या फ्रैक्शनल इंडेक्स है तो पहले तो अपन ने उसको रिमूव करना है, देन वी कैन गिव द डिग्री ऑफ द डेरिवेटिव। ओके बेटा। अब यहां पर ये जो इक्वेशन है बेटा इसकी ऑर्डर कितनी है, ऑर्डर इज 2 और डिग्री कितनी है 1। ओके। अब यहां पर ऊपर देखो बेटा, यहां पे इसकी ऑर्डर कितनी है बेटा, द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसकी डिग्री भी कितनी है 1 है। सो ऑर्डर इज 1, डिग्री इज ऑल्सो 1, डिग्री भी 1 है। राइट। यहां पर देखो बेटा ऑर्डर 2, डिग्री इज 1 क्योंकि इसका पावर 1 ही है। यहां पर देखो बेटा ऑर्डर 2 है और उसकी डिग्री भी 2 है, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2। यहां पर ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। ओके। सो डिग्री में क्या करते बेटा अपन, वी सी द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट पावर नहीं देखते बेटा, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो बेटा ये सेकंड वाला डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। आप बोलोगे कि द ऑर्डर इज 2 देयरफॉर द डिग्री इज 1। ऑर्डर 2 करेक्ट है बेटा, ऑर्डर इज 2 डी स्क्वायर बाय सेकंड डी एक्स स्क्वायर, लेकिन डिग्री 1 नहीं है क्योंकि देखो बेटा फ्रैक्शनल इंडेक्स है ये क्यूब रूट। मैं अभी ये अपने पेज पे लिख के बताता हूं बेटा। देखो बेटा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ क्या था बेटा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से है। अभी इसको जो है बेटा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा अपन, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब रूट मतलब क्या बेटा रेस टू कितना बेटा 1/3, रेस टू 1/3। करेक्ट। तो ये फ्रैक्शनल इंडेक्स अपने को उड़ाना है, तो क्या करेंगे बेटा टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब लेंगे बेटा। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1/3 रेस टू 3, 3 गेट कैंसिल। उसके लिए तो क्या था बेटा अपन, तो क्या है बेटा इसका अभी ऑर्डर इज 2 और डिग्री कितनी आएगी बेटा, डिग्री इज 3। तो पहले तो आपको क्या करना है बेटा, वी डोंट वांट एनी फ्रैक्शनल इंडेक्सेस, 1/3 2/3 ऐसा नहीं चाहिए बेटा। ओके। नाउ 2 3 4 ऐसा चलेगा बेटा, 2 3 4 ये चलेगा, लेकिन फ्रैक्शनल या नेगेटिव नहीं चलेगा बेटा। करेक्ट। ओके। तो फिर यहां पर देखो बेटा ये फर्स्ट प्रॉब्लम था इसलिए मैंने पूरा सॉल्व करके बताया है। शॉर्टकट में क्या आएगा बेटा, यहां पर क्यूब रूट है तो क्या करेंगे बेटा इसका क्यूब लेंगे, इधर क्यूब रूट है इधर क्यूब लेंगे, ठीक है ना। सो इट विल बी 3, it will be 3, right beta? Okay, so this is all about order and the degree of a differential equation. देखो बेटा बीच में दिया है the degree is 3। अब यहाँ पर देखो बेटा dy by dx is equal to x plus 7 upon dy by dx। अपन बोलेंगे बेटा ये जो पावर है ये 1 है तो इसकी डिग्री भी 1 है, ऑर्डर तो 1 है बेटा नो डाउट, एक ही बार dy by dx है, लेकिन ये जो है बेटा ये dy by dx रेज टू -1 है, तो इसको क्रॉस करेंगे क्या आएगा बेटा dy by dx ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x plus 7। नाउ देयर इज नो नेगेटिव इंडेक्स, देयर इज नो फ्रैक्शनल इंडेक्स, देयरफॉर द ऑर्डर is 1 and the degree is 2. Okay beta? Okay. Now we will see the solution and the particular solution. Okay beta? Particular solution के पहले अपने को solution देखना है for differential equation. The function in the form y is equal to fx plus c which satisfies the given differential equation is called as the solution. पता है बेटा सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या था, द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। यहां पर क्या आएगा बेटा द फंक्शन इन द फॉर्म y इज इक्वल टू fx plus c which will satisfy the given differential equation. Now there are two solution, every differential equation has two solution, एक तो है types of solution, not two solutions, types of solutions, I am sorry। एक तो एक जनरल सोल्यूशन और दूसरा है पर्टिकुलर सोल्यूशन। The solution of the differential equation in which the number of arbitrary constant is equal to the order of the differential equation is called as the general solution। मतलब solution में कितने constants है
अगर कॉन्स्टेंट्स रहेंगे बेटा जिसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन. पर्टिकुलर सॉल्यूशन में द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन. ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहां से आता है बेटा? जनरल सॉल्यूशन से ही आता है. बाय गिविंग अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द कांस्टेंट, टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. जैसे अपन ने देखो बेटा, जब अपने को इंटीग्रेशन लेते थे तो प्लस सी आता था इनडेफिनेट इंटीग्रल में, और डेफिनेट इंटीग्रल में सी की वैल्यू अपन निकालते थे. यहां पर भी वैसे कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग निकाल के लेंगे बेटा. करेक्ट? okay, and they are called as the particular solution. So let's go now for the first exercise, that is exercise number 8.1. Now some of the problems we will do it orally and the others which will require some of the solution, तो अपन उसको solve करेंगे. Right बेटा? Exercise number 8.1, determine the order and degree of the following differential equation. तो क्या करना है बेटा? अपने को order and degree देना है. तो देखो बेटा, यहाँ पर the order is 2, second order है ना बेटा, दो बार डेरिवेटिव लिया है, द ऑर्डर इज 2, और अगर ऑर्डर 2 है तो उसकी ही डिग्री कितनी है बेटा? द डिग्री इज 1, डिग्री 1. ऑर्डर 2 अपन ने चेक किया कि ऑर्डर कितनी है, तो ऑर्डर 2 थी और डिग्री 1 थी, और देयर वाज नो फ्रैक्शनल इंडेक्स और नो नेगेटिव इंडेक्स इन इट. ओके बेटा? ओके. सेकंड वन देखो बेटा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स. यहां पर भी बेटा there is no negative, no fractional, so directly order is 2 and degree भी कितनी है बेटा? 2 है, both. करेक्ट? थर्ड वन में देखो बेटा, d रेज टू 4y dx रेज टू 4 प्लस 1 प्लस dy by dx ब्रैकेट स्क्वायर रेज टू 3. अब यहां पर देखो बेटा, इफ वी सिंप्लीफाई दिस ब्रैकेट तो 2 3 मतलब dy by dx रेज टू 6 आएगा, लेकिन उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है बिकॉज इट इज पॉजिटिव ओनली. ऑर्डर कितने बेटा? ऑर्डर इज 4 बिकॉज देयर आर 4 टाइम डेरिवेटिव, और उसकी डिग्री है लेते हैं अपन, दैट इज डिग्री इज 1. इसकी डिग्री 1 है, नॉट दैट इसकी जो डिग्री 3 है या 3 2 6 है उसकी डिग्री से अपने को लेना देना नहीं है. डिग्री क्या होती है बेटा? द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. फोर्थ में देखो बेटा, y रेज टू 3. अब देखो बेटा 3 डैश है, 3 डैश मतलब क्या बेटा? थर्ड डेरिवेटिव. अपन ने देखा था बेटा लास्ट चैप्टर में, ये y2 डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव, उसका स्क्वायर है 6y डैश प्लस 7y इज इक्वल टू 0. नो नेगेटिव इंडेक्स, देयरफॉर डायरेक्टली इसका आंसर अपन लिख सकते हैं. क्या आएगा देखो बेटा? अभी ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 2. ऑर्डर इज 3 एंड द डिग्री इज 2. करेक्ट बेटा? ओके. लेट्स गो फॉर द फिफ्थ वन. अब फिफ्थ में देखो बेटा, ये स्क्वायर रूट है मतलब रेज टू 1/2 है, तो अपना काम क्या है बेटा? पहले तो इससे उसको हटाना है, डायरेक्टली 3/2 अपन इंडेक्स नहीं देंगे. ठीक है? सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस. 1 प्लस 1 अपॉन dy बाई dx, 1 प्लस 1 अपॉन dy बाई dx स्क्वायर, और उसका क्या है बेटा? स्क्वायर रूट है, इज इक्वल टू dy बाई dx रेज टू 3/2, रेज टू 3/2. ओके बेटा? अब क्या करेंगे बेटा? अभी सबसे पहले ये स्क्वायर रूट है तो, और यहां पर भी 3/2 है मतलब स्क्वायर रूट है, तो क्या करेंगे बेटा? स्क्वायर रूट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? स्क्वायरिंग. एक साइड को कर सकते हैं बेटा? नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ओके बेटा? तो ये रूट भाग जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन dy बाई dx ब्रैकेट स्क्वायर, रूट तो हट गया, और इधर भी dy बाई dx रेज टू 3, क्योंकि दोनों भी रूट क्या हो जाएंगे बेटा? हट जाएंगे व्हेन वी आर स्क्वायरिंग. करेक्ट? अभी भी देखो बेटा, ये डिनोमिनेटर है मतलब इसका पावर -2 है. राइट? अभी भी अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली. फिर क्या करेंगे बेटा? अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. पहले dy बाई dx ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1, क्या किया बेटा अपन ने? क्रॉस मल्टीप्लाई. dy बाई dx ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1, नीचे भी आएगा dy बाई dx ब्रैकेट स्क्वायर, यहां पर आएगा dy बाई dx का क्यूब. ओके बेटा? अब क्या होगा? ये dy बाई dx वापस एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस साइड को जाके, राइट साइड को जाके, dy बाई dx ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? dy बाई dx रेज टू 3 एंड dy बाई dx रेज टू 2, मतलब कितना आएगा बेटा? dy बाई dx रेज टू 5. तो नाउ हियर क्या आएगा बेटा? डिग्री आ गया इसका 5. ऑर्डर कितना है बेटा? ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 5. ओके बेटा?
सिंपल था, अपन ने क्या किया था बेटा, इसको अपन ने जो नेगेटिव इंडेक्स है उसको हटा दिया था, राइट। एक बार वापस देखो बेटा, बिकॉज यहाँ पर ये स्क्वायर रूट की साइन थी और यहाँ पर भी 3/2 मतलब स्क्वायर रूट है। अपन ने क्या किया बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर किया तो क्या होगा बेटा, स्क्वायर एंड रूट दे विल गेट कैंसिल, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल। तो अपने को ये रूट भाग जाएगा, 1 + 1 अपॉन डिवाइड बाय x ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी जो अपॉन 2 है बेटा, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा बेटा, this 2 and this 2 will get cancelled, करेक्ट ना बेटा, this 2 and this 2 will get cancelled, therefore अपने को क्या मिलेगा, dy by dx raised to 3। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, dy by dx ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा अपॉन dy by dx ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू dy by dx क्यूब, करेक्ट। क्या किया इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद एक बार वापस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए ना बेटा dy by dx, अपने को पता है बेटा डिनोमिनेटर में रहेगा, मतलब उसकी जो पावर है दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव नहीं चाहिए, फ्रैक्शनल भी नहीं चाहिए। इसको क्रॉस करेंगे बेटा इसके लिए, तो dy by dx raised to 5। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है dy by dx, so we can say that the order is 1 because it is the first order derivative and the degree is 5। okay beta, okay, let's go for the next one, that is the sixth one। dy by dx is equal to 7 d square by dx square, directly we can say order कितनी बेटा 2 and degree कितनी है 1, simple। okay, अभी यहां पर देखो बेटा, d cube y by dx cube raised to 1/6 is 9। अब देखो बेटा 1/6 मतलब क्या हो गया बेटा, मतलब क्या हो गया, the sixth root फ्रैक्शनल इंडेक्स। तो क्या करेंगे अपन, टेकिंग द सिक्स्थ पावर, क्या करेंगे, टेकिंग द सिक्स्थ पावर, तो क्या आएगा d cube y by dx cube raised to 1/6 raised to 6, सिक्स पावर लिया ना तो इधर भी लेना पड़ेगा, 9 raised to 6, 6 will get cancel। तो अभी क्या आएगा बेटा, yes the order is 3 and the degree is 1, the degree is 1। This completes this first question, and now we move on to the second question। In each of the following examples, verify that the given function is a solution of the corresponding differential equation। Now we have said that the function is the solution। अब ये solution है बेटा, xy is equal to log y plus k and this is the DE, मतलब क्या बेटा, differential equation। differential equation क्या है बेटा, y dash मतलब dy by dx 1 minus xy is equal to y square and this is the solution। solution क्या है बेटा, xy is equal to log of y plus k, correct। तो अपने को we have to see whether this is the solution or not। तो फिर अपन क्वेश्चन लिख के लेंगे बेटा, फर्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या है बेटा, द सॉल्यूशन इज xy is equal to log of y plus k and the differential equation is y dash 1 minus xy is equal to y square। अब देखो बेटा यहाँ पर y dash दिया है, मतलब we have to differentiate only once। ओके, तो ये क्या है बेटा, सॉल्यूशन क्या है, xy is equal to log of y plus k। तो क्या करेंगे बेटा, अपन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या आएगा बेटा, प्रोडक्ट रूल आएगा, x विल बी एज इट इज, y का कितना आएगा बेटा, dy by dx मतलब y dash प्लस y एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, log y कितना आएगा बेटा 1 upon y एंड dy by dx, k क्या है बेटा, कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा बेटा, पर इक्वल टू चाहिए बेटा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले देखो बेटा ये y को इधर ले लेंगे अपन, तो क्या आएगा बेटा xy इंटू y डैश प्लस y स्क्वायर, y स्क्वायर लिखा बेटा इधर, इधर क्या चाहिए y डैश। अब y डैश को भी इधर ले लेंगे बेटा, xy y डैश माइनस y डैश प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस साइन कॉमन लेंगे, y डैश 1 माइनस xy इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा एंड वी गेट दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, y dash 1 minus xy is equal to y square। this was the differential equation which was given, therefore we can say क्या बेटा कि xy is equal to log y plus k is a solution, it's a solution of the differential equation। कौन सा बेटा, y dash 1 minus xy is equal to y square।
ओके बेटा, तो क्या करना है बेटा, अपने को इसको डिफरेंशिएट करके देखना है। ऑर्डर कितना है बेटा डेरिवेटिव का, फर्स्ट, तो एक बार अपने को डेरिवेटिव लेना है, करेक्ट। ओके, लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन। सेकेंड में देखो बेटा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n है इक्वेशन, y is equal to x raised to n and the differential equation which is given वो है x square d square y by dx square minus n x dy by dx plus n y is equal to 0. This is the differential equation और आपने को चेक करना है कि ये दोनों सही है कि नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ पर there is the second order derivative, तो कितने बार डेरिवेटिव लेंगे बेटा अपन, 2 बार, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा y का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, y डैश इज इक्वल टू n x रेज टू n माइनस 1। ओके बेटा, y डैश इज इक्वल टू n x रेज टू n माइनस 1। अब y डैश की जगह पे अपन dy बाय dx भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx की ये वैल्यू आ गई बेटा। अगेन डेरिवेटिव करेंगे वो, क्योंकि यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव लेना है बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा बेटा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n एज इट इज x रेज टू n माइनस 1 का कितना आएगा बेटा, n माइनस 1, n माइनस 1 इधर आ जाएगा ना बेटा, ओके, इनटू x रेज टू n माइनस 2, दिस इज गुड, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, ओके, तो फिर अभी इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा था बेटा, द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच वाज गिवन x square d square y by dx square minus n x dy by dx plus n y is equal to 0। तो ये कितना आएगा बेटा, x square d square y by dx square की वैल्यू n minus 1 x raised to n minus 2 minus n x dy by dx कितना है बेटा, dy by dx n x raised to n minus 1 और उसके बाद प्लस n इंटू वाई इज इक्वल टू 0, करेक्ट। ओके, नाउ हियर ये एक्स स्क्वायर है, x रेज टू n माइनस 2 है, क्या आएगा बेटा, x रेज टू 2 प्लस n माइनस 2, 2 विल गेट कैंसल एंड वी गेट x रेज टू n। तो कितना आएगा देखो बेटा इधर, n माइनस 1 x रेज टू n, ओके बेटा। उसके बाद माइनस ये x रेज टू n माइनस 1, ये तो n स्क्वायर आएगा बेटा, ये क्या आएगा x रेज टू n प्लस n y इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ वी हैव टू सी वेदर दिस इज 0 और नॉट। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर आपने को पता है y की जो वैल्यू है वो है x रेज टू n, x रेज टू n मतलब y है बेटा, तो ये इतना y आता, ये क्या बचा n माइनस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस n, क्या किया बेटा अपन ने, y को अपन ने कॉमन लिया है, x रेज टू n भी क्या आ जाता बेटा y, ये कितना है n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर गया इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, y इंटू 0 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो गया ना, satisfied, therefore this is the equation, this is the solution। सॉल्यूशन पूरा लिखो बेटा, क्या बेटा, y is equal to x raised to n is the solution of x square y double dash plus n x y dash plus n y equal to 0, क्योंकि ये राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दे आर मैचिंग, राइट। ओके, सो लेट्स गो फॉर द थर्ड वन। थर्ड वन y is equal to e raised to x dy by dx क्या है बेटा, y है ना, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अपन डायरेक्टली इसको डेरिवेटिव करेंगे बेटा, तो क्या आएगा बेटा, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या बेटा, e रेज टू x, लेकिन e रेज टू x क्या है बेटा, y है ना, मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू y। सो डायरेक्टली वी कैन से दैट दिस इज अ सॉल्यूशन, this is the solution, y is equal to e raised to x is the solution of dy by dx is equal to y। नेक्स्ट देखेंगे बेटा फोर्थ वन, y is equal to 1 minus log x, x square d square y by dx square is equal to 1। okay, y is equal to 1 minus log x and the differential equation which is given
यह है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितने बार करना पड़ेगा बेटा? 2 बार, क्योंकि द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। y का कितना आएगा बेटा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का तो 0 आएगा, log x आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्स को इधर लेंगे बेटा, या फिर डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएट करेंगे द सेकेंड टाइम। dy बाई डी एक्स का कितना आएगा बेटा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव का वापस डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर। माइनस 1 अपॉन एक्स का क्या है बेटा? मेरे को पता है बेटा, 1 अपॉन एक्स का है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कितना आएगा बेटा? 1 बाय एक्स स्क्वायर। करेक्ट, एक्स स्क्वायर को इधर लेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा? 1। दैट कंप्लीट द आंसर। यहाँ पर क्या आता बेटा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर ले गया, so this is also what the given differential equation है ना बेटा। therefore ये satisfy हो रहा है, therefore we can say y is equal to 1 plus 1 minus log x is a solution of the differential equation। कौन सा बेटा? x square d square y by dx square is equal to 1। इसका solution है बेटा ये। go for the fifth one। ओके बेटा, फिफ्थ वन में क्या दिया है देखो बेटा, उसने y इज इक्वल टू a e रेस टू x प्लस b e रेस टू माइनस x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। y इज इक्वल टू क्या दिया बेटा उसने? y इज इक्वल टू a e रेस टू x प्लस b e रेस टू माइनस x। नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे अपन विद रिस्पेक्ट टू x। y का रेडियो क्या आया था बेटा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a e रेस टू x। a कांस्टेंट है एज इट इज, और e रेस टू x का रेडियो e रेस टू x प्लस b e रेस टू माइनस एक्स। e रेस टू माइनस एक्स का रेडियो e रेस टू माइनस एक्स इंटू कितना बेटा? माइनस 1। करेक्ट ना बेटा? ओके, और अगर डिफरेंशिएट करेंगे अपन इसको दूसरी बार, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a e रेस टू एक्स, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस अभी ये वापस b e रेस टू माइनस एक्स का e रेस टू माइनस एक्स, ये माइनस 1 एज इट इज रहेगा, ये दोनों भी कांस्टेंट, और एक बार वापस माइनस 1। इसका डेरिवेटिव लिया ना बेटा अपन ने, तो माइनस 1, तो इसका कितना आएगा बेटा? माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बी a e रेस टू x प्लस b e रेस टू माइनस x। अगर ये कंफ्यूजन है बेटा तो यहाँ पर अपन ऐसा लिख सकते हैं बेटा, a रेस टू x माइनस b e रेस टू माइनस x। वापस डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा बेटा इसका? इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे इधर आया, एंड वी कैन इजीली सॉल्व इट। ओके ओके, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब a एक्स प्लस b e रेस टू माइनस एक्स क्या है बेटा? इट इज आवर y, है ना, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। तो इसको क्या करेंगे बेटा अपन? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y फ्रॉम 1। ओके बेटा, ओके, लेट्स गो फॉर द, लेट अस सॉल्व द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन में देखो बेटा उसने क्या कहा है? a स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ax square plus by square is equal to 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना आता बेटा? देखो 2ax प्लस 2by dy बाय dx इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अगेन एक बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे y बेटा, क्योंकि अपने को जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है बेटा, देखो यहाँ पर द डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है बेटा, मतलब वी हैव टू डिफरेंशिएट इट ट्वाइस। ओके ओके, तो वापस लिया बेटा अपन ने, तो कितना आएगा बेटा इसका? 2a और x का रेडियो तो 1 ही आएगा, प्लस अभी यहां पर देखो बेटा 2b कांस्टेंट है, ये y dy बाई dx का डेरिवेटिव कैसे लेंगे बेटा? बाय द प्रोडक्ट रूल। y विल बी एज इट इज, dy बाई dx का कितना आएगा बेटा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx एज इट इज, और y का भी डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? dy by dx as it is, y का डेरिवेटिव dy by dx is equal to 0। ओके बेटा, इसका मतलब है ये आता है 2a प्लस 2by डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस dy by dx ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इसको बोलेंगे अपन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या आता है देखो बेटा, 2a की वैल्यू अपने को मिल सकती है बेटा,
2a इज इक्वल टू क्या आता है बेटा, देखो ये 2by dy by dx इधर चला जाएगा बेटा 2by dy by dx, और ये जो x है इसके नीचे आ जाएगा। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो एक स्टेप अपन और बढ़ाएंगे बेटा। कैसे बेटा, देखो 2ax इज इक्वल टू माइनस 2by dy by dx। अपने किसकी वैल्यू चाहिए, 2a की। 2a इज इक्वल टू माइनस 2by अपॉन x इंटू dy by dx। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इन सब्स्टिट्यूट 2a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना बेटा 2a का माइनस 2b y अपॉन x dy बाय dx प्लस 2b y डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, 2b वी कैन टेक एज कांस्टेंट, 2b को अपन ने कांस्टेंट ले लिया तो कितना आएगा बेटा माइनस y अपॉन x dy बाय dx प्लस y डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 2b तो अपन ने बाहर लिया है dy बाय dx ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 2b क्या आएगा बेटा, 0 का लेफ्ट साइड में राइट साइड में जाके 0 डिवाइडेड बाय 2b विल बी 2b प्लस y डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन 2b। 0 अपॉन 2b कितना आता है बेटा, 0 आएगा, विच इज इक्वल टू 0। तो इसका खत्म हो गया। नाउ x डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए बेटा, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x माइनस y dy बाय dx प्लस x y डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय x, वो 0 ही आना है। इसको अपन रीअरेंज करेंगे, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस कंप्लीट्स दिस प्रॉब्लम, राइट बेटा। अब चेक करेंगे अपन, देखो बेटा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स डी वाई बाय डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी वाई बाय डी एक्स। अब वाई डी वाई बाय डी एक्स को अपन ये जो माइनस है उधर लेके गए तो प्लस ही होने वाला बेटा, बाकी के सारे टर्म्स करेक्ट है। तो लास्ट लाइन कर देंगे बेटा अपन, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी वाई बाय डी एक्स। देयरफॉर विल से, देयरफॉर ये जो है कौन सा बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा बेटा, ये वाला, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी वाई बाय डी एक्स। ओके बेटा, ओके, दैट कंप्लीट दिस फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 and we'll continue with 8.2 in the next one। उसमें इसमें क्या किया था बेटा, अपन ने क्या किया था, सोल्यूशन है कि नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन का ये चेक किया था। सेम थिंग वी हैव टू डू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज अपने को सोल्यूशन दिया है उसमें से अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है। ओके बेटा, बाय।